मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। Yes, Lord, we look to your face and we look forward to that promise that you're going to come back and take us home. But Lord, until that time, Lord, we pray that you strengthen us and give us that strength to hold on to you, to hold on to our faith, God, and to look only to your face and to worship you and to praise you. इस सुबह के इस अवसर पर हमारे दिल, हमारी जान सब आपके पास रखते हैं, Lord. Bless us, help us to all have a wonderful time of word and worship and fellowship together. We thank you for this opportunity to be called brothers and sisters because we are saved and we are one in the blood of Christ. We thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother James. That was so powerful time of worship and just being in God's presence. I just wish we could continue some more time and just being in God's presence. Praise God. Sister Nisi, if you could please help me with the translation. I just want to bring my greetings to all of you who have joined this evening, this morning, from wherever you are, in which part of the world, but I bring my Christian greetings to you. May the Lord richly bless you and touch your life. Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक आराधना का समय हमको दिया है और मैं ऐसा इच्छा कर रहा था कि और भी कुछ समय हम आराधना में बिताए। और आज हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। Can I see just your hands lifted up and your smiling faces? If I can, please, may the Lord richly bless you. Praise God. Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और यदि हो सकता है तो मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। Praise God. You know, we may be going through various challenges, various difficulties, but we have hope in our God that He will never leave us. He will never forsake us. Praise God. Hallelujah. हम अपने जीवन में बहुत ही अलग अलग प्रकार के विभिन्न परेशानियों को तो सामना करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Even last week, as many of you know, Daddy was in the hospital, and by the grace of God, today he has been discharged, and just they have reached home. They are online with us, but
They're probably not in a condition to speak to us, but we thank God for all His mercy and His grace. और जैसे हम सभी लोग जानते हैं, मेरे माता और पिता पिछले हफ्ते उनका तबीयत ठीक नहीं था और मेरे पिताजी अस्पताल में थे, लेकिन परमेश्वर उनको छुटकारा दिया और आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अभी उनका वो बातें नहीं करना चाहते, हम बाद में उनसे बातें करेंगे. Praise God. And today we want to take some time in prayer as we come this evening time into God's presence, knowing that He hears our prayers and He answers our prayers. Hallelujah. और शाम के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के रूप में आएंगे. परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसको उत्तर भी देते हैं. He's a God. The Word of God says that His ears are open to the cry of the righteous. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के कान जो है धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगी रहती है. You know, there are many people who cry, but when a righteous man cries, God hears his cry. बहुत सारे लोग रोते तो जरूर है, लेकिन जब एक धर्मी व्यक्ति रोते हैं तो ये परमेश्वर उनकी बातों को सुन लेते हैं. Can you praise God because there is a God in heaven who hears when you cry? क्या अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसको स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में है और वो हम जब उनको रोक कर पुकारते हैं वो हमको सुनते हैं. Yes, we may go through seasons of trials and pains and embarrassment, but there is a God who in heaven who hears when we call upon Him and when we cry to Him. Hallelujah. और हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट और क्लेश तो आएंगे, लज्जा की अवस्था भी आएंगे, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास एक परमेश्वर है जो जब हम उनको पुकारते हैं वो हमको सुनते हैं. So why don't we come to this evening time with prayer into His presence, knowing that He is our heavenly Father. तो आज इस शाम के समय हम उनकी उपस्थिति में आते हैं और ये स्मरण करके आते हैं कि वो हमारे स्वर्गीय पिता है. I just want to take a word before we go into prayer, as we normally do. We will read from Psalms chapter 34 and verses. We're going to read from 4 and verses 5. Psalms 34 verses 4 and 5. If you can, some of you can turn your cameras on. I would love to see you and talk to you. So please do turn your cameras on if you can. और आज हम जो है वचन पहला भजन संहिता से कुछ वचनों को देखेंगे. हम निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय 34 अध्याय उसका 4 और 5 आयतों को हम देखेंगे. और जिन लोग अपने कैमरा वीडियोस को ऑन कर सकते हैं वो ऑन करेंगे तो अच्छा है. मैं आपको देखना भी चाहता हूँ. I wanted to engage with me in prayer because I'm not praying alone. I want to engage with you. Together we're going to pray, come to God's presence and pray to Him. Praise God. Hallelujah. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें. मैं केवल अकेला प्रार्थना नहीं करना चाहता, लेकिन हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे. And this word here says that I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. और वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. Amen. Today we are going to come to God and He is going to hear us. He is going to deliver us from all our fears. How many of you believe this? और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर हमारे सुनने वाले हैं और वो हमको पूरी रीति से निर्भय करने वाले हैं. Because when fear goes away, there is faith that rises up. Hallelujah. क्योंकि जब ये डर निकल जाता है तभी विश्वास का उत्पादन होता है. When God comes and intervenes, there is provisions for us. Hallelujah. जब परमेश्वर आते हैं और कार्य करते हैं तभी हमारे लिए एक प्रबंध परमेश्वर करते हैं. There is healing in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है. There is deliverance in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में चंगाई और छुटकारा है. There is mighty revival when we come in the name of Jesus. He revives us. यीशु मसीह के नाम से जब हम आते हैं तभी हमारे अंदर एक बहदारी हो जाता है. And the verses 5 says like this, that they looked to Him and they were radiant and their faces were not put to shame. Praise God. और 5वां आयत इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया. Amen. Will you look to God today? Praise God. क्या Hallelujah. परमेश्वर की ओर देखेंगे? Will you receive your strength from the Lord today, this evening time? और इस शाम के समय क्या आप अपना सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त करेंगे? Will you say, God, come down to help me, Lord? Hallelujah. क्या परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आओ और मुझे छुड़ाइए? And the word says that those who look to Him, their faces
started to shine, and they were not ashamed. Praise God. Hallelujah. और वचन कहते हैं जो उनकी ओर दृष्टि करते हैं उनका चेहरा जो खिल उठते हैं, उसके चेहरा में ज्योति होता है और वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। Some of your situation demand you, that makes you ashamed, makes you fearful. But the word of God says that when you look to God, he will make your faces to shine. You will not be ashamed. I prophesy to some people this evening time. There are situations in your life that is claiming to make you ashamed. But there is a God who says, if you look to him, your faces will not be ashamed. Hallelujah. और आपके जीवन में ऐसा अवस्था आएगा जब भी आप लज्जित हो जाते हैं और लज्जा की अवस्था का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो उनकी ओर देखते हैं उनका मुंह जो है वो प्रकाशमय हो जाता है और वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। और मैं कुछ लोगों को ये भविष्यवाणी करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में लज्जा होने का या लज्जित होने का अवस्था नहीं देंगे। You may have come here with a heavy heart, with a weary mind, with tiredness in your life. But the word of God is here to refresh us and to strengthen us and to enable us to stand up and know that he is for us. Who can be against us? Praise God. और आप शायद से बहुत ही थके हुए हैं और आपके हृदय में आप बहुत ही चिंतित है, परेशान है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे ताकि आप खड़े होकर कह सके कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन है। The enemy tries to steal your joy, but Jesus comes to give you joy and peace into your life. Hallelujah. आपका अंदर से वो आनंद जो है उसको चुराने के लिए शैतान आता है, लेकिन परमेश्वर जो है आपको वो आनंद देना चाहते हैं। And today, why don't we look up to God, lift up our hands to him and say, Lord, I've just come holding on to this word. I've come to in your presence to seek you, O Lord. Hallelujah. और क्या आज इस शाम के समय अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपके समीप आता हूँ और आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। What is the burden in your heart? What is the fear in your heart? What is the challenge in your heart? Pour it before God and say, Lord, I come to seek your face, O Lord. और आपके हृदय में क्या परेशानी है, आपके हृदय में क्या दुख की अवस्था है, जो भी बातें हैं, जो चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो, सारी बातों को आज आप परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। What is the fear that is troubling you? What is the anxiety that you're concerned about? Don't lift it yourself, but give it to God. And his word says, I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Praise God. Hallelujah. और जो भी भय आपके अंदर है, जो भी निराशा की अवस्था, जो भी डर का अवस्था आपके अंदर है, वो आप उठाइए नहीं, लेकिन आप उसको परमेश्वर के हाथ में दीजिए, क्योंकि वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। I can sense an exchange of the burdens for peace. I can sense it right now. The Holy Spirit is exchanging your burdens for the peace of the Almighty God. Hallelujah. और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग के जीवन से पवित्र आत्मा जो है उनके जीवन से भय को निकालकर परमेश्वर को शांति को प्रदान कर रहे हैं। There is no situation that God cannot pull you out from. Praise God. If you commit that to the Lord this evening time, praise God. और ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जिससे परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकते हैं यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो। There is no prison doors that he cannot break open if you call out to the God in the midst of your crisis. Praise God. और ऐसा कोई बंदी गृह नहीं है जिसको परमेश्वर तोड़ नहीं सकते यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो। There is no addiction that he cannot change or situation that he cannot turn it upside down. If you reach out to God and say, Lord, here I am. I bring my burdens to you. I keep it at your presence, oh God. Rise up for me, great Jehovah. Praise God. Hallelujah. और ऐसा कोई बात नहीं है जो परमेश्वर आपके जीवन में बदल नहीं सकते, ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं है जो आपके जीवन में परमेश्वर बदल नहीं सकते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। People might have forgotten you, your relatives might have forgotten about you, your church people might have forgotten about you, but there is a God who never forgets you. Praise God. Hallelujah. लोगों ने आपको भूल गए होंगे, आपके कलीसिया वाले आपके भूल गए होंगे, आपके मित्र आपको भूल गए होंगे, लेकिन ऐसे एक परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं भूलेगी। He knows that he counts the hair on your head. Praise God. Hallelujah. वो आपको जानते हैं और आपके सिर के हर एक बाल को वो गिन के रखे है। He knows your life more than you do. Praise God. और जितना आप अपने बारे में जानते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं। So open your mouth and lift up your hands to God and say, Lord, here I am in your presence. I need your help, O Lord. तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मैं यहाँ हूँ, आपकी ओर से मुझे कुछ प्राप्त करना है।
Just open your mouth and start talking to God. You can talk to God in your own language. Just start talking to Him. Hallelujah. अपने होठों को खोलकर परमेश्वर से बातें कीजिए। आप अपने अपने मातृभाषा में परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। Father, we come to you in the name of Jesus, your Son, with the help of the Holy Spirit. पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा। And your word says that I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Lord, we seek you, God. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। परमेश्वर आज हम आपको ढूंढते हैं। Lord, deliver us from our fears, we pray, O Master. और हमारे भय से हमको छुड़ाइए। Deliver us from our anxieties, O God, we pray, O Lord. Hallelujah. और हमारे निराशाओं से हमको छुड़ाइए। Deliver us from where the enemy is trying to attack our minds. Deliver us from this fear, O God, we pray. And Lord, we pray this morning time, evening time, we are praying that, Lord, as your word says, they looked to Him and they were radiant. Their faces were not ashamed. Hallelujah. परमेश्वर आपके वचन के लिए हम स्तुति करता हूं कि आपके वचन बोलता है कि जो आपके ऊपर देखा उनके मुंह चेहरा कभी लज्जित नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर कि हमारे चेहरे को आप लज्जित नहीं करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति गाता हूं परमेश्वर, क्योंकि आप बलवंत परमेश्वर है। हमारे हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड वी गिव यू प्रेज एंड थैंक्सगिविंग टू यू गॉड। हालेलुया परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले ये हम विश्वास करते हैं। And Lord, we give our burdens to you for your peace and your joy today. परमेश्वर हमारे सारे बोझ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपकी शांति को हम प्राप्त करना चाहते हैं। Let our faces to shine, O God, we pray. और आपका हमारे चेहरा को आप ज्योति में या प्रकाश में बनाइए। Oh Lord, let our strength to rise up, we pray, O God. Hallelujah. और खड़े होने के लिए वो सामर्थ आप हमको दीजिए। We especially pray for Daddy also. Send your healing upon his body right now in the name of Jesus. और हम पिताजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अभी ही आपका चंगाई का जो सामर्थ है उनको ऊपर कार्य करने पाए। Every cell in his body that is responding against let it come to be strengthened, oh God, we pray. और उनके शरीर के हर एक क्षेत्र को, हर एक पार्ट को आप संभालिए और वो वापस सामर्थ्य रीति में वापस आने पाए। So that he can serve you with all his strength, I pray, oh God. Hallelujah. ताकि वो पूरे सामर्थ से आपकी सेवकाई कर पाए। Pray for mommy also. Strengthen her, Lord, we pray, Master. Hallelujah. और मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनको बलवंत कीजिए। We pray for Pastor Rohidas who is helping them out. Cover him with your grace and your strength, I pray, oh Master. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पास्टर रोहिदास जो उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको भी आपकी सामर्थ से भर दीजिए। And we pray for each and everyone that is gathered here. I pray for your peace and your joy and your goodness and good health to fill their lives. We pray, oh Master. परमेश्वर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपके भलाई से उनको भर दीजिए। In Jesus' mighty name we ask and we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. Praise God. Can we all lift up our hands and give a praise to our Lord? Hallelujah. कि हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। When we pray, know one thing. When we pray, we got to believe that God hears our prayer. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आपको ये बात समझना है, परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं। Otherwise, we are talking to the air. नहीं तो हम केवल हवा में बातें कर रहे हैं। But if you know that God has heard your prayer, you must be confident that He will do something. और यदि आपके अंदर ये हियाव है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, तो आपके अंदर ये हियाव भी होना जरूरी है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे लिए करने वाले हैं। You will be filled with the confidence of this knowledge that He will do something for me. और आप इस हियाव के इस ज्ञान से बन जाएंगे कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। Oh, we are so happy to see Daddy also back again from the hospital, from all those tubes and everything. He has come back and sitting on that sofa. Daddy, we are so happy to see you today. और आज पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अस्पताल में सारे ट्यूब और उसके बीच में थे, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया और आज वो घर में बैठे हुए हैं।
And we thank God for His miracles and His mercies that are in our lives. Praise God. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो छुटकारा के लिए और चंगाई के लिए। Oh, come on, we are going to hear God's word, and I pray that you will be with great expectation this evening time to hear the word of God. और आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ बैठे वचन सुनने के लिए। Today we had Brother James Verghese come and lead our worship. We were enjoying the presence of God as he led those worship, and I was really enjoying God's presence. और आज हमारे साथ ब्रदर जेम्स वर्गीस जुड़े हुए थे आराधना में और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही ज्यादा महसूस कर पा रहा था आराधना में। And I wish we could continue more time, but our time is limited. But if we got some time towards the end, Brother James, if you can lead us in one final song, that would be fantastic. और मैं चाहता था कि हम और भी कुछ गीत को गाकर आराधना करें, लेकिन हमारे पास बहुत ही सीमित समय है। लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रदर जेम्स, यदि आप हो सकते हैं तो अंत के भाग में कुछ समय आप आराधना में अगुवाई कर सकते हैं। We're going to read from the 2 Corinthians chapter 1 and verses 3 to 5. 2 Corinthians chapter 1 and verses 3 to 5. हम निकालेंगे 2 कुरिन्ती उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे। And it says like this: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in our tribulation, that we may be able to comfort those who are in trouble with the comfort which we have ourselves are comforted by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so the consolation also abounds through Christ. और वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। We hear in this word of God some names of God: the Father of mercies, the God of comfort. और इस वचन में हम कुछ परमेश्वर के नामों को देख सकते हैं कि शांति का परमेश्वर, जो आश्वासन देते हैं। Can you say, the God of mercies, the God of comfort is my God? Hallelujah. और शांति का परमेश्वर और आश्वासन का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। क्या आप ये कह सकते हैं? You may be going through a crisis right now. You may be going through a difficult situation right now. But our God is the God of all comforts. He is the Father of all mercies. Praise God. और आप शायद से बहुत ही ज्यादा व्याकुल होंगे, आप बहुत ही ज्यादा निराश होंगे, शायद से बहुत ही बड़ा संघर्ष से आप जाते होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो करुणा का परमेश्वर है, वो शांति आश्वासन देने वाला परमेश्वर है। Many times Christians they come with the knowledge that God can do everything in their lives. और बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग जो है ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। God can move the mountains, God can heal the sickness, God does miracles and many things, and we know about the power of and the ability of our God, and we celebrate this. परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे सामने से जो भी मुश्किल है, जो भी पहाड़ की अवस्था है उनको निकाल सकते हैं। वो हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर से बहुत सारे कार्य हमारे लिए कर सकते हैं। But sometimes we forget the nature of God, which is His sovereignty, which means that He does what He wants in His time. और बहुत से बार जो है हम परमेश्वर के जो ईश्वरत्व या परमेश्वर का जो अपना जो स्वभाव है उसको भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। Sometimes God delivers us from death, sometimes He allows death in our life. पर कभी-कभी परमेश्वर हमको मृत्यु से छुटकारा देते हैं, कभी-कभी परमेश्वर वो मृत्यु की अवस्था हमको दे देते हैं। Sometimes when we go through the fire does not consume us. Sometimes the fire does consume and kill. कभी कोई अवस्था में परमेश्वर आपको उस आग की अवस्था से बचा लेंगे, लेकिन कुछ अवस्था में परमेश्वर उस आग के द्वारा आपको मार सकते हैं। But sometimes, but in all this we know that He is still on the throne and He is God.
और इन सारे बातों में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है और वो हमारा परमेश्वर है। The three young boys in the book of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they knew God was almighty. और हम 3 बालकों को देख सकते हैं दानियल के पुस्तक में, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो जानते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। But they also knew that God was sovereign. That means he did what he wanted in his time, in according to his will. और वो परमेश्वर के संप्रभुता को भी जानते थे और वो ये जानते थे कि परमेश्वर जो अपने समय में करना चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो करते हैं। And that's why when the king made the fire and they came to the fire, they told the king, King, even though our God saves us or does not save us, we will not bow down to you or to your fire. इसीलिए वो बालक जो है राजा को कहते हैं, जब वो राजा उस आग की भट्टी को और भी 7 गुना ज्यादा तेज कर देते हैं, तभी वो कहते हैं कि परमेश्वर यदि हमको छुड़ाए या ना छुड़ाए, फिर भी तो भी हम आपके मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। There are some fires happening in your life right now, and the devil is screaming at you that you bow down to those fires. But can you say, if my God delivers me or does not deliver me, I will not bow down to the pressure you're putting in my life. I will not be anxious. I will not be depressed. I will not be sad, because my God is an almighty God. Whether he saves me or not, I will not be moved. Praise God. Hallelujah. शायद से आपके जीवन में उस आग की भट्टी के समान अवस्थाएं होगा, शायद से उस आग की भट्टी के सामने झुकने का अवस्था शायद से शैतान आपके जीवन में डालता होगा, लेकिन आप क्या विश्वास के साथ कह सकते हैं, यदि परमेश्वर मुझे यहाँ से छुड़ाए या ना छुड़ाए, फिर भी मैं उस आग के सामने नहीं झुकूंगा, मैं निराश नहीं होगा, मैं व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। It is there in that fire when you proclaim this, that God comes down into the fire as the 4th person, and the people around you see the God who comes down for his people. Praise God. और जब भी आप विश्वास के साथ इन घोषणाओं को करते हैं, तभी परमेश्वर उस आग की भट्टी में चौथा व्यक्ति के समान उतर आते हैं, और लोग जो है आपको देखेंगे और वो जानेंगे कि परमेश्वर उनके लोगों के लिए उतर आते हैं। Our God allows troubles to happen in our lives. Our God allows sicknesses to come into our life. He allows things to happen. But in the midst of this, when we stand faithful to God, he will take all the glory. Hallelujah. और हमारे जीवन में परमेश्वर कभी कभी संकट की अवस्थाओं को, रोग की अवस्था को देते हैं, लेकिन जब भी हम उसमें विश्वास योग्य ठहरते हैं, परमेश्वर आपको और भी बलवंत करते हैं। Some of your troubles are not to break you, but they are to make you stronger in Jesus. और आपके जीवन में कुछ बातें जो है आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपको और भी मजबूत करने के लिए है मसीह में। Amen. Some of your fires are to bring an exaltation to your life and not bring you down. Praise God. और कुछ आपके जीवन में कुछ आग की अवस्था जो है आपको और भी बढ़ोतरी की ओर लेके जाने के लिए है, और आपको नाश करने के लिए नहीं है। Some of your tribulations are to make that into your testimony. Praise God. और आपके जीवन में कुछ चुनौतियां जो है, वो चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन वो एक गवाही के समान बनाने के लिए है। It all depends on how you respond to your trials and to your tribulations. और ये बातें जो इसके ऊपर निर्भर होता है कि किस प्रकार से आप अपने संघर्ष को, आपकी चुनौतियों का सामना करते हैं, उसका प्रतिक्रिया किस प्रकार से आप करते हो। When the trials come to your life, are you complaining? Are you murmuring against God? Or are you saying, God, I did all this. I know I pay my tithes. I go to church. Yet, why is this happening in my life? Are you complaining against God? जब भी आपके जीवन में संघर्ष और क्लेश आते हैं, क्या आप शिकायत करते हैं, क्या परमेश्वर मैं सारे बातों को तो करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं दशांश को देता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे बातें क्यों हो रहा है, कि इस प्रकार से आप शिकायत करते हो? Or are you murmuring against God and his people and saying, hallelujah, look at their life, look at his life. Why is my life like this? And always bringing a complaint to God. या फिर आप अपने बारे में, या फिर अपने कलीसिया के लोग के बारे में, आसपास के लोग के बारे में, या परमेश्वर के खिलाफ आप कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं और उनके बारे में बुरी बातों को कहते हैं। But you can change from that attitude towards saying, God, if you have brought me into this crisis, I know that you got something good in this. Take me through this victoriously, Lord.
और यदि आप उस रवैये से बदलते और एक नया रवैये को लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपने मुझे इस अवस्था में लाया है और आप मुझे इस अवस्था से विजय के रूप में एक जयवंत रीति से बाहर निकालेंगे. Because that's what the word of God says. I want to prophesy and say to Sister Mariama Matthew, you are going through some crisis in your life, but the Lord says, I am with you in this. I am the Lord who says that I will uphold you with my righteous right hand. I will never leave you nor forsake you. Praise God. और सिस्टर मरियमा मैथ्यू से परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार से कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयों को आप सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपके संग है. परमेश्वर के दाहिने धर्ममय हाथ से आपको ऊंचा उठाएंगे और आपकी सहायता करेंगे. It makes you feel wearied. It makes you feel tired. It makes you anxious. Sometimes to make you cry. But the Lord says, I am the one who is beside you. No man can touch you. और आप शायद बहुत बार जो है दुखी हो जाते हैं और बहुत बार व्याकुल हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं किसी को तुझे छूने का अधिकार नहीं दूंगा. The things that God has prepared for you, no man can stop it from you, and He will bring to fruition into your life. Can you repeat, Pastor? The things that God has prepared for you, no man can stop it, and God will make those things to happen into your life. और जो बातों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता और वो निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा. Be expectant of something that God is doing in this new season for you. और इस नए मौसम में आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नई बातें करने वाले हैं और इस प्रतीक्षा के साथ आप रहना है. So this word says that the 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 5 says that God who comforts us in our tribulation, that we may comfort others as they go through their tribulation. Praise God. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है, आश्वासन देते हैं और वो हमको क्लेश से जाने की अवसर दे दे ताकि हम दूसरों को शांति दे सके. But if you have not received comfort in your trials or your tribulation, how can you comfort somebody else? यदि आप अपने चुनौती के बीच में, आपके क्लेश के बीच में, यदि आपने शांति नहीं प्राप्त किया है, परमेश्वर से आश्वासन प्राप्त नहीं किया है, तो आप दूसरों को कैसे शांति और आश्वासन दे सकते हैं? If you have complained in your trial and in your circumstances, if you have murmured there, if you got angry there, how can God use you to encourage somebody else who's going through a crisis? जब भी आप अपने क्लेश के बीच में, आपके संघर्ष के बीच में आप कुड़कुड़ाते हैं या फिर परमेश्वर के प्रति शिकायत करते हैं, तो आप किसी और को, कोई और व्यक्ति को आश्वासन या शांति कैसे दे सकते हैं? Because the word here says that the God who comforts us with all comforts in our trials and our tribulations, how can you complain to this God? और हमारा परमेश्वर जो है सारे क्लेशों में शांति देने वाले परमेश्वर है और इस परमेश्वर के खिलाफ शिकायत आप कैसे कर सकते हो? There are many people who complain when things go wrong. They complain against God. They get tired. They get weary. But remember, God wants you to look to Him and receive a new strength there. And He wants to use your life for your glory of God. और बहुत से बार लोग जो है इस संकट के बीच में परमेश्वर के प्रति शिकायत करने लगते हैं, लेकिन आप ये जानना है कि परमेश्वर आपको वहां रखे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए. Different people respond differently to trials and tribulations, but we see here in the Word of God, and I'm going to talk about how do we respond to our trials and to our tribulations. और अलग अलग लोग अलग अलग रीति से अपने संघर्ष और परेशानियों का प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपने संघर्ष के प्रति और हमारे परेशानियों के प्रति हमको कार्य करना है. You know, if you take an egg and a potato and put it in boiling water for 10 minutes. और यदि आप एक आलू को और एक अंडे को लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं और उसको गर्म करते हैं, and the water starts to boil. और वो पानी गर्म होने लगता है. After some time you take the egg and you see the egg has become hard. और बहुत देर के बाद पानी उबलने के बाद आप देखते हैं कि वो अंडा जो है वो बहुत ही कड़क हो गया है. But the potato has become very soft. लेकिन ये आलू जो है वो बहुत ही नरम हो गया है. Same way, is your tribulation making you hard inside? Or it is making you softer inside? उसी प्रकार से क्या आपका संघर्ष आपको कठोर कर रहा है भीतरी रूप से या फिर आपको नरम बना रहा है?
Are you receiving God's comfort day by day in your tribulation? That God can change your heart, that you can become a witness about His mercy and His grace to others? Or have you become hard in your heart saying, what is the use of serving God? क्या परमेश्वर से प्रतिदिन आश्वासन और शांति को प्राप्त करते हैं, और आप ये कह सकते कि परमेश्वर का शांति और आश्वासन मेरे अंदर है, या फिर आप आपके क्लेश के बीच में ये पूछते परमेश्वर से कि परमेश्वर ये सब क्या है? You know, you can choose. It is your choice. Nobody else can make that choice. Only you can make it. Devil cannot make this. Your husband cannot make this. Your child cannot make this. Your family members cannot make this. You have to make the choice. How will I respond to my trouble that is there today? और जो प्रतिक्रिया है वो आपका है, और आपका जो किस प्रकार से आप प्रतिक्रिया करना है वो आप कोई करना होता है। आपके पति या फिर आपके बच्चे जो है वो नहीं कर सकते। आपको चुनना है कि आपको किस प्रकार से आपके क्लेश के प्रति, आपके दुख के प्रति प्रतिक्रिया करना है। Is anyone going through any trial or tribulation in their life? You can lift up your hands. Is there any trials in your life? क्या आप लोगों में से कुछ लोग है, ऐसा कोई है जो अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं? Some people will say, if I had 3-4 hands, I would lift all of them. और कुछ लोग कहते होंगे कि अगर मेरे पास 3-4 हाथ होता तो मैं सब कुछ उठा देता। Because we all go through various trials. We all go through different trials according to our life situation and life circumstances. और हम सभी के जीवन में संघर्ष है। हम सभी के जीवन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति के परेशानी को हम देख सकते हैं। Last month I met a great man of God, here in New York. और यहाँ न्यूयॉर्क में पिछले महीने में मैंने परमेश्वर के एक महान दास को मैंने देखा। He has done great things for the last 40 years. Different parts of the world, he has done many ministries and big things. और पिछले 40 सालों में उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा सेवकाई किया। अलग अलग भाग, दुनिया के अलग अलग भाग में, जगहों में जाकर उन्होंने परमेश्वर के लिए सेवकाई किया है। So he was telling me some of his challenges that he faces. और वो अपने जीवन की कुछ चुनौतियों को मुझे बता रहे थे। I don't face any of those challenges. और वैसा प्रकार का कोई भी चुनौती को मैं मेरे जीवन में सामना नहीं करता। But I have my own challenges. लेकिन मेरे जीवन में मेरा व्यक्तिगत चुनौतियां है। Each of you have your own challenges. आप सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार के चुनौती है। Sister Sushma Durai is laughing because she has got very little challenge, I guess. सिस्टर सुषमा दुरिया हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन में बहुत ही कम संघर्ष है। But I think she is rejoicing in God, knowing that God is with her. Praise God. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो आनंदित है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। So let us see, how do we respond to our trials and to our challenges? और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने चुनौतियों के प्रति या संघर्ष के प्रति प्रतिक्रिया करना है। Number one thing, know that God does not allow anything in my life to break me, but only to make me. सबसे पहला ये समझना है, परमेश्वर आपके जीवन में जो बातें भेजेंगे वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपको और भी अच्छा बनाने के लिए, आपको एक आकार देने के लिए है। Can you say that God does not want to destroy me, but He wants to lift me up? Praise God. क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे नाश करने के लिए नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं? The brothers of Joseph thought that they would kill Joseph and put an end to him. But Joseph said, what you thought of evil, God turned it around for my good. Hallelujah. और यूसुफ के भाई जो है उन्होंने उनको मारकर उनको बेच दिया, उस कुएं में डाल दिया। लेकिन यूसुफ कहता है जो बुराई की बातें तुमने सोचा है, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया है। So number one thing, decide and know every day when you wake up, when challenges come to you, when there are troubles, that know that if God has bought this, there is something good in this. He will take me through this and bring me out victoriously. और आपको ये स्मरण करना है प्रतिदिन जब भी आप सुबह उठते हैं कि परमेश्वर ने यदि मुझे इस अवस्था में रखा है तो परमेश्वर मुझसे कुछ चाहते हैं और वो मुझे बलवंत करेंगे और मुझे जयवंत रीति से इससे बाहर निकालेंगे। If God has not opened the door of finance for me, that means God wants me to be patient and to depend upon Him and to trust Him and to know that He is still the miracle working God. यदि परमेश्वर ने आपके लिए आर्थिक रीति में कुछ कार्य नहीं किया है तो आपको ये समझना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और भी ज्यादा धीरजवन बने, इंतजार करें ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ और मार्गों को खोल सके। Sometimes God makes you to wait, but that waiting is to prepare you
to mold you, to shape you, to make the best out of you. बहुत बार परमेश्वर आपको इंतजार करने के लिए कहते हैं ताकि वो इंतजार का समय में परमेश्वर आपको बना सके, आपको एक नया आकार दे सके. Is there somebody waiting in waiting list? Is there somebody in the waiting list? क्या यहाँ कुछ लोग हैं जो वेटिंग इंतजार कर रहे हैं या वेटिंग लिस्ट में है? You have prayed, you have fasted, you have been waiting, and you are still waiting. Is there anyone here in the waiting list? Yes, I think in many things I am in the waiting list. और आपने प्रार्थना किया, आपने उपवास किया, बहुत सारे बातों को किया. मैं विश्वास करता हूँ मैं भी वेटिंग लिस्ट में हूँ. Because we are all in that waiting, in the process which God is building us up. He's shaping our life. And don't get upset with this, because this is God's process of doing things. और बहुत सारे बार हम जो है इस संघर्ष के बीच में, इस इंतजार के समय में हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको हियाव को खोना नहीं है, आपको हियाव में बनाए रहना है. You know why God allows suffering? Because He saved us from our sins. We sang beautiful songs of Jesus came and died for us for our sins. He saved us. Salvation is an event, but sanctification is a process. और हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये संघर्ष और क्लेश क्यों आते हैं. हमने बहुत गीतों को गाया. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से उतर के आया और हमको उद्धार दिया है. और जो उद्धार जो है हम जानते हैं वो बहुत ही कीमती है. और जो शुद्धिकरण जो है वो एक प्रतिक्रिया है, एक प्रक्रिया है वो जो निरंतर बनी रहती है. If you don't go through the sanctification process, in the end when Jesus comes and you have to rule with him, if you don't have the character, how can you rule with him? और जब भी पवित्रकरण जो है वो प्रक्रिया यदि आपके अंदर नहीं है, तो जब यीशु मसीह हमारे बीच में आएंगे, वापस लौट के आएंगे और आपको उनके साथ न्याय करना होगा, तो उनके साथ वास करना होगा, तो आप कैसे वास कर सकते हैं? This tribulation and the trials and the challenges will help us to shape the unwanted things away from our life and bring us to the knowledge and character of the Lord Jesus Christ. और ये सारे संघर्ष और सारा वेदना के अवस्था जो है वो हमको हमारे स्वभाव को बनाता है, उसको और भी अच्छा करता है और हमको और भी ज्यादा पवित्र करता है, ताकि हम परमेश्वर के आगमन पर तैयार रहे. A few months back, I was in a place called Dallas, and there I met this man, and he said he was praying to God, give me patience. और कुछ 2 महीने के पहले मैं डालस में एक व्यक्ति से मिला और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे धीरज दीजिए. He got 2 twins. और उनको 2 जुड़वे बच्चे थे. And he said, I wrote a book about patience. और उन्होंने कहा कि मैंने धीरज इस विषय पर एक पुस्तक ही लिखा है. Because God taught him about patience through those children. क्योंकि परमेश्वर ने उनके बच्चों के द्वारा धीरज इस विषय के बारे में सिखाया है. How many of you prayed, God take away the anger from me, and God bought you a wife? और कितने लोगों ने ये प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरे अंदर से वो क्रोध को हटा दीजिए, और परमेश्वर ने आपको एक पत्नी दिया है. Or God bought you a mother-in-law? या फिर आपको एक सासू माँ दिया है. Or God bought you a good neighbor, exactly what you wanted. या फिर परमेश्वर ने आपको बहुत ही अच्छा एक पड़ोसी दिया है, जो पड़ोसी आप चाहते थे उसी प्रकार का एक पड़ोसी आपको दिया है. Who always keeps pecking you. जो हमेशा आपको नोचता रहता है. And you are saying, get behind me, Satan, get away from me, Satan. You are praying, you are fasting, you are thinking, what is happening all this, in my life. और आप सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, शैतान मेरे से दूर हो जा, मेरे जीवन में क्या हो रहा है. Because you prayed for it, you prayed, God give me patience and they'll take me the anger away from you. So God has to bring something in your life to let you let those angry situations come up, where you can learn to receive patience from God. क्योंकि आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे धीरजवान बनाइए, मुझे विश्वास दीजिए, और उस विश्वास और धीरज को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अवस्थाएं देंगे ताकि आप उस अवस्था में बने रहकर आप विश्वास में आगे बढ़े या आपके अंदर धीरज उत्पन्न हो जाए. I know in Sister Sharmila's mother's place, she had a neighbor who had keeping chickens in the building. I know she was always complaining, this lady is doing so much trouble for us. और सिस्टर शर्मिला के माता के वहाँ एक पड़ोसी थे जो हमेशा चिकन को रखते थे, और वो कहते थे हमेशा कि ये स्त्री हमेशा हमको परेशानी देती है.
So, so God allows these things, but it depends on how do you respond to them, depends on whether you become hard or you become soft. और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अवसर को देते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से उसको उसका प्रतिक्रिया करते हैं, और उसके ऊपर निर्भर होता है कि यदि कि आप कठोर होते हैं या फिर कोमल होते हैं. When your husband is not cooperating with you, or when your child is not cooperating with you, or when your wife is not cooperating with you, or when your family is not cooperating with you, do you become angry, upset, or do you say, God, give me the grace? जब भी आपके बच्चे आपके साथ सहमति नहीं करते हैं, या फिर आपके पति आपके साथ सहमति नहीं करते हैं, तो क्या आप क्रोधित होते हैं या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको बलवंत करे? Because the God of grace and God of mercy and the God of comfort wants to give you grace and mercy and wants to comfort you in that tribulation. जो क्योंकि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है और जो दया का परमेश्वर है, जो आश्वासन देते हैं, चाहते हैं कि आपको उस अवस्था में आपको शांति और आश्वासन प्रदान करे. But if you are thinking on your own mindset, if you think on your own ways, how can you receive from God if you don't think like what He wants you to think? लेकिन यदि आप अपने ही सोच विचार के अनुसार सोचने लगते हैं, तो आप परमेश्वर की सोच विचार के अनुसार कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं? Word of God says that I'm not going to read all, but you can write it down. 1 Corinthians chapter 10 verses 13 says that God does not allow any temptation beyond what you can bear. You can write this down. I'm going to give you a few words, but you can write it down quickly. 1 Corinthians 10:13 says God does not allow any temptation that you are not able to bear. और पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 13वां आयत में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. अब मैं और भी कुछ वचनों को देना चाहता हूँ. सभी वचन को हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जो है वचन को लिख सकते हैं. Romans chapter 5 verses 3 to 5 says that we glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance produces character, and character builds up hope into our lives. और रोमियो 5 का 35वां आयत इस प्रकार से कहता है कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं. रोमन्स 5 verses 3 to 5. ओके. रोमियो 5 अध्याय उसका 3 से 5वां आयत में हम देख सकते हैं, केवल यही नहीं कि वरन हम क्लेश में भी गमन करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. So the tribulation is not to break you, but it is to make you, to give you character, to give you to give you hope in your life. और ये जो संघर्ष है, जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपके अंदर धीरज देने के लिए और आपके अंदर खरेपन को उत्पन्न करने के लिए है. Psalms 34:19 says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. भजन संहिता उसका 34 का 19वां आयत इस प्रकार से कहता है कि धर्मी का जो क्लेश है वो असंख्य है, लेकिन परमेश्वर उनको सभी परेशानी से उनको बचा देते हैं. And Jesus says in John 14:1, let not your heart be troubled, believe in God and believe also in me. और यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका एक आयत में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. So word of God tells us that we will have challenges, we'll have tribulation. It is just that we have to accept the fact that tribulation and challenges God will allow in our life, but how do I respond to it matters. और आपको ये समझना है कि आपके जीवन में संघर्ष और क्लेश तो जरूर आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में संघर्ष और क्लेश देंगे, लेकिन आप उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से करते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है. So as I said, number one thing is to understand the purpose of challenges and trials in your life. तो सबसे पहला बिंदु ये था कि हमको समझना है कि हमारे जीवन में क्लेश और संघर्ष का मकसद क्या है. Nobody fast and pray for Lord give me trouble or give me trials. Nobody does that. It comes to you. What if you don't pray also, it will come to you. और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना कर कहता है कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में परेशानी दो, क्लेश दो, संघर्ष दो. ऐसा कोई भी नहीं करता है. But it comes to you. If you don't ask also, you ask also, it will come to you. और लेकिन वो आपके पास आ जाता है, आप मांगे या ना मांगे वो आपके पास आ जाता है. Trouble comes to all people, whether you are Christian or not Christian, Buddhism, Islam, whatever man or woman, trouble comes to you.
और संघर्ष जो है सबके जीवन में जरूर आता है, क्या आप मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, या फिर एक पुरुष हो या स्त्री हो, सबके जीवन में संघर्ष और क्लेश तो जरूर आएंगी। But the outcome of your challenges, and when you come out of that, what happens is very important. लेकिन उस चुनौती से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Okay, so second thing, we're going to talk about the first thing is that we didn't know to understand why the purpose of troubles and trials and tribulations in our life. And the second thing about when you go through, now we spoke last week about the second thing. Do you remember what we spoke last week? If you are suffering, pray. और हमने पहला बिंदु देखा कि हमको हमारे क्लेश और संकट में जो है हमको ये उसका उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना है। और दूसरा बिंदु जो है हमने पिछले बार सुना है, क्या आप याद करते हो, हमने ये बात देखा था कि यदि आप संघर्ष में हो, दुखी हो, तो प्रार्थना कीजिए। James chapter 5 verses 13 says that if you are suffering, pray. याकूब उसका 5 का 13 आयत इस प्रकार से कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। Yeah, don't complain, don't murmur, don't say it is because of my husband, because of my wife, because of my children, because of my pastor. Start praying. और जब भी आपके जीवन में संघर्ष और क्लेश आते हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर शिकायत नहीं करना है, ये मेरे पत्नी के कारण है, पति के कारण है, पास्टर के कारण है, ऐसे बातों को नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना कीजिए। Or is it because of myself? I am at fault. I should have done that, and I cannot forgive myself. Some people cannot forgive themselves. They forgive everyone else, but they don't forgive themselves. और या फिर आप अपने आप को दोष लगाते हैं, मेरे कारण मैंने ऐसा किया, इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। कुछ लोग जो अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं, वो सभी लोग को माफ तो करते हैं, लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। You got to forgive yourself because Christ has forgiven you. You are released. Forgive yourself and move on. Know that, bring your burdens to the Lord in prayer. आपको अपने आप को माफ कर देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को माफ कर दिया है। आपको परमेश्वर के पास आना है, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। I don't know, the Holy Spirit is prompting me to speak that quickly once again. Some of you are not forgiving yourself. Holy Spirit wants to remind you to forgive yourself and let go. Whether it is a past sin or past challenges, let it go. If God has forgiven you, He has forgiven you completely. You have nothing to hold back. और पवित्र आत्मा मुझे एक और बार ये बात दोहराने के लिए कह रहे हैं कि कुछ लोग जो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर कहते कि आप अपने आप को क्षमा कीजिए, आपको माफ कर दीजिए। आपकी शायद से वो अपने पिछले पाप होंगे, अपने भूतकाल के पाप होंगे, कुछ भी बातें होने दो, लेकिन आप अपने आप को माफ कर आगे बढ़ना है। Number 3, we talked about number 1 is to have an attitude to know that about the troubles. Number 2 about praying. Number 3, very important thing is put on the armor of God. और हमने 3 बिंदु को तीसरे बिंदु की ओर हम चाहेंगे। हमने पहला 2 बिंदु ये था कि हमको हमारे क्लेश संघर्ष का जो मकसद है, उद्देश्य है, उसको जानना है। फिर यदि आप दुखी है तो आपको प्रार्थना करना है। और तीसरा बिंदु ये है कि हमको परमेश्वर का जो कवच है, उस विश्वास का जो कवच है, उस वस्त्र को पहन लेना है। I'm not going to, you all know about the armor of God, so I'm not going to go there, but I want to quickly pick another verse which talks about to resist the devil using the armor of God. Read from 1 Peter chapter 5. It is from 8 to 10, but I'm not going to read that whole portion, but I'm going to read one verse from there. It says, resist him steadfast in faith. और हम जानते हैं हथियार बंद कैसे हम लोग रह सकते हैं, परमेश्वर का वो कवच को कैसे हम पहन सकते हैं। हम उन बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन मैं पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 8वें आयत को मैं देखना चाहता, उसमें से कुछ वचनों को देखना चाहता हूँ। लेकिन केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सचेत हो और जागते रहो, और विरोधी शैतान को हमको उसको इनकार करना है, उसका विरोध करना है। So the word of God says that resist him steadfast in faith, knowing that the same trouble all the people of God are facing. और हमको जो है शैतान को सामना करना है, और हमको ये समझना है कि सारे लोग जो है इसी प्रकार के संघर्ष से जाते हैं। How do you resist the devil? How do you resist the devil? और हम शैतान को इनकार कैसे करते, इसको रोकते कैसे हैं? If I would say, there's some bad people are outside in your neighborhood, how will you resist that person?
और उदाहरण के लिए यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ बुरे लोग हैं तो उन लोगों का विरोध आप कैसे करेंगे? Number one thing is don't open the door if they knock. Don't open. और सबसे पहला बिंदु ये है कि आप जब भी वो लोग आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं तो आप उसको खोलना नहीं है. Sometimes he does not come. He sends somebody else and says he comes and knocks first, and then he's standing on the side. Don't look properly. If somebody is standing there, don't open. और बहुत बार जो है वो लोग स्वयं नहीं आता है, वो नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी और को बेचते हैं और वो आके खटखटाते हैं और वो जो व्यक्ति है वो बाजू में खड़ा रहता है. तो आपको खोलना नहीं है, आपको खोलने से पहले देखना है कि आजू बाजू में कोई खड़ा है या नहीं. And that is why, if you open the door, he will come into your house and he will steal away all the things in your house. क्योंकि यदि आप अपने दरवाजे को खोल देते हैं तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश करता है और आपके घर की सारी बातों को वो चुरा लेते हैं. Devil also comes with this slowly knocking, knocking. Your mother is not good. Your father is not good. Your husband is not good. Your wife is not good. And you're listening. Sometimes you open to say what is not good. And then he says, he did that, she did this. And slowly you entertain him, make him sit down, talk to him, and then he grabs you. और बहुत बार शैतान भी इसी प्रकार से आपके पास आता है, खटखटाते हुए आते हैं छोटे छोटे बात को. आपके माता अच्छा नहीं, आपके पिता अच्छा नहीं, आपके पत्नी अच्छे नहीं है, तो आप पूछते कि क्या है, उनके अंदर क्या बुराई है, तो वो आपको उनका बुराई को बताने लगते हैं कि वो ऐसा है, उनके जीवन में ऐसा है, और धीरे धीरे से वो आपको उनके वश में कर देते हैं. And at the end of the day, you feel very tired. Everything that you made up, all the message you heard from last week, all is gone. Now you have to say, Pastor, please pray for me. Please fast for me. I'm so weak. I'm so tired. Because what happened? Devil came and stole everything. फिर आप जो है बहुत ही बलहीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और आप जो है बहुत ही बलहीन अवस्था को महसूस करने लगते हैं. और आप क्योंकि शैतान ने जो है आपके जीवन से सारी बातों को चुरा लिया है. फिर आप अपने पासवान को कहते हैं कि पासवान मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए उपवास कीजिए, क्योंकि आपके अंदर से सारे बातों को जो है शैतान ने चुरा लिया है. Nowadays, people are very smart. They don't have time to pray. No, Pastor, pray for me. Pastor, fast for me. Pastor, see if God is telling you anything about me. Nothing they will do, but they want to know if God is telling something about me. All this Pastor do. और आजकल के लोग जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं. वो खुद से स्वयं से कुछ करते नहीं है. वो पास्टर से कहते हैं कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर आप मेरे लिए उपवास कीजिए, और परमेश्वर मेरे प्रति कुछ कहना चाहते हैं, आप कीजिए. वो लोग परमेश्वर के लिए कुछ करते तो नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि परमेश्वर में से कुछ कहते हैं या नहीं, और पासवान से सब बातों को करने के लिए कोशिश करते हैं. Even if God screams from heaven, they will not do anything. और यदि परमेश्वर स्वर्ग से चिल्लाकर भी उनको कुछ कहे, फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे. Because if you cannot read what the word of God says and resist the devil, how can God do something else for you? क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन को आप नहीं पढ़ते हैं और आप विरोध नहीं करते शैतान का, तो आपके लिए परमेश्वर कुछ कार्य कैसे कर सकते हैं? And how do you use your faith when the devil comes and says, that this trouble will destroy you? No, God is for me, who can be against me? Push him back. और जब भी शैतान आपके पास आता है और आपको कहते हैं कि ये जो समस्या है वो आपको पूरी रीति से नाश कर देगा, तभी आपको क्या कहना है कि परमेश्वर मेरे संग है और मेरा विरोध कोई नहीं है, और इस बात को कहकर आपको शैतान का विरोध करना है. When the fear comes into your life, I don't know what to do. What we will do, we will get all destroyed. What will happen to our future? Isaiah 41:10 says, "Fear not, for I am with you." Push him back. और जब भी आप बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तभी आप जो है विश्वास के साथ ये कहना है कि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह उसका 41 का 10वां आयत में कि डरना नहीं है कि परमेश्वर हमारे संग है. इस वचन को कहकर आपको शैतान का विरोध करना है. And then there is a 14:14 verse. Yeah, you remember the 14:14 verse, Exodus 14:14. God will fight for you. और निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 14वां आयत इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेंगे. So when the devil tries to say, you cannot do it, you're not capable, tell him 14:14. और जब भी शैतान कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा, तभी ये निर्गमन उसका 14 का 14 आपको कहना है. Because the word of God says, God spoke to Moses and said, Moses told to the people and said that, be strong because God will fight for you.
और क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और वो कहते हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। Praise God. So you can use the word of God to stand against and fight against the devil and tell him, shut up and get out from my life. तो आप परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान का विरोध कर सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं कि चुप हो जाओ और मेरे जीवन से निकल जाओ। Some people open their door, make the devil to come and sit down, give him tea also, and he takes everything and goes. और कुछ लोग जो है अपने दरवाजे को खोल देते हैं और शैतान को आके बैठने का अवसर बनाते हैं और उसको चाय भी देते हैं और वो अपने जीवन से, आपके जीवन से सब कुछ लेकर वो चले जाते हैं। Don't engage with people who will tell you things and make your faith go down. Engage with people who strengthen your faith. और ऐसे लोगों के साथ सहभागी नहीं बनना है जो आपको कुछ बातों को कहकर आपको निराश करते हैं, आपको नीचा कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सहभागी होना है जो आपको विश्वास में आगे बढ़ाते हैं। There are some people, they call themselves Christians, but always always keep on saying evil about others, talk about others. Please don't talk. If they call also, I can tell you, please ignore their phone call. और कुछ लोग जो है उनका नाम तो मसीह है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो हमेशा किसी के बारे में बुराई करते रहते हैं। आप यदि हो सके तो आप उनसे बातें नहीं करना है और हो सके तो उनका कॉल को भी अटेंड मत कीजिए। But there are some others, if you call them out of 5 minutes, 4.5 minutes, they'll talk about the things about God. Talk to such people. It will encourage your faith. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनसे आप बातें करेंगे तो 5 मिनट से 4 मिनट जो है वो परमेश्वर के बारे में कहेंगे और आप वैसे लोगों से बातें कीजिए ताकि आपका विश्वास आगे बढ़ पाए। So we spoke about 4 things, and the last 5th thing is about learning from your trials. Every trial, every challenge must teach you something. और 5वें बिंदु को हम देखेंगे कि हम अपने संघर्ष से, अपने परेशानी से हमको कुछ बातों को सीखना है, हमारे हर एक चुनौतियों से हमको कुछ सीख को ले लेना है। So we have learned 5 things, and every time when you come to learn from your trials, you will receive something from God, and if you pass that test, you will go from class 10 to class 11. और हम जानते हैं जब भी हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी आते हैं और जब भी हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सामर्थ को प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं, तभी हम उस 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा की ओर बढ़ते हैं। Some people are in grade 3 only. They are not progressing. For last 20 years, they're in grade 3. Cannot overcome depression. Cannot overcome anxiety. और कुछ लोग जो है अभी भी वो 3री कक्षा में पढ़े हुए हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, वो व्याकुल ही रहते हैं, वो अपने निराशा को काबू नहीं कर पाते हैं। Because when you overcome anxiety, you come to grade 4. Grade 4 is another thing, is about fighting spiritual warfare. You overcome that, you come to the next one. You go to the next one. God gives you training, you overcome that, and then you go to take over greater things for the Lord. Praise God. क्योंकि 3री कक्षा में हम देख सकते हैं वो शायद से अपनी व्याकुलता के ऊपर जब भी हम विजय होते हैं, तभी हम 4थी कक्षा में जाते हैं, तभी शायद से वह नया बात होगा कि हमको आत्मिक क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, हमको उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ऐसे नई नई बातों को सीखकर हमको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े बातों को हमको करना है। So how many of you received something today to take and apply to your life and change your life? और कितने लोगों ने आज परमेश्वर से कुछ प्राप्त किया है और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने लायक बातों को आपने स्मरण किया है? So Brother James, we're going to go into worship. I'm just going to bring out once again the 5 points. And the number 1 point is that know that God allows challenges or trials in your life not to break you, but to make you. और हम आराधना में जाने से पहले हम उस 5 बिंदु को एक और बार देखेंगे। सबसे पहला जानिए कि परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में परेशानियों को देने के लिए चाहते हैं, ताकि आप वो परेशानी जो आपको नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको और भी उभारने के लिए और भी अच्छे से बनाने के लिए है। Number 2 is that pray about the situation. Ask God for help. Involve God. Get him into your troubles. Let him know how you feel and receive the strength from God. Number 2. और दूसरा बिंदु यह है कि आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास जाके बातें करना है और उनसे वो सामर्थ को प्राप्त करना है ताकि आप उस अवस्था से बाहर आ पाए। Number 3 is put on the armor of God. Resist the devil. Tell him 14:14. Okay, resist the devil and do not listen to his voice. और फिर अगला बिंदु है कि हमको परमेश्वर का उस हथियारों को पहन लेना है और शैतान का इनकार करना है और 14 का 14 निर्गमन 14 के 14 को उसको कहना है और इसका विरोध करना है। And the last one is to learn from your trial.
स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गा